Let's start our next topic of mathematics paper first, that is matrices. Actually, this topic we have already studied in the 11th standard. I don't know what you have taken from that chapter, but still I request all of you to revise once that chapter matrices in 11th standard. First of all, let's take some introductory part of matrices. In the last standard we have studied what we have actually studied in matrices. See, matrix is the rectangular arrangement of elements. Now, there is some difference between determinant and matrices. What was the determinant? Determinant was the square arrangement of elements in enclosed in the vertical straight lines. Square arrangement, that means number of rows and number of columns were same in determinants, but just the difference of that word square. In matrices, the rectangular arrangement of elements in the form of rows and columns. Now, what is meant by rectangular arrangement? Arrangement of elements in the form of rectangle. Suppose A11, A12, A13, A21, A22, A23. It is a rectangular arrangement of elements. Now, enclosed in the square bracket. Enclosed in the square bracket. Rectangular arrangement of elements enclosed in a square bracket. Now, how these elements are allocated? See here, this is the matrix Aij. Suppose we call it as capital A. Capital A is the matrix having elements Aij having the order m by n. That is what we have already studied. How these Aij elements are written? That are like this: A11, A12, A13. Suppose A21, A22, A23, A31, A32, A33, and it is having, this is suppose row number 1, it is suppose row number 2, it is suppose row number 3. R1 means row number 1, R2 means row number 2, R3 means row number 3. This is suppose column number 1. It is suppose column number 2 and it is suppose column number 3. So, this element A11 in this particular number, first number represents the row number of that element. This first number represents the row number of that element and this second one represents the column number of that element. So, first row and first column. So, element at the position of first row and first column. So, A11, it is the element at the position of first row and second column. So, A12, first row and third column, row and third column. So, A13, it is the element in second row and first column. So, A21, A22, A22, A23, and similarly all the elements of the matrix are allocated to the respective positions. Now, what is this m by n? M by n is the order of a matrix. That means this matrix contains m number of rows and n number of columns in it. So, what about this? 2 number of rows. So, order of this matrix will be 2 by 3. What about this? It contains 3 number of rows and 3 number of columns. So, matrix order of a matrix will be 3 by 3 in this particular case. So, that m by n represents the order of a matrix. Now, this is the matrix. We have already seen all the types of matrices in 11th standard also. What are the types of matrices? There was row matrix, a matrix having only one row. There is no restriction to number of columns, but only one row, that is the row matrix. A matrix having only one column, that is the column matrix. We have seen the zero matrix. All entries of the matrix are 0, then that is the 0 matrix. We have seen the square matrix also. What was the square matrix? Number of rows and number of columns are same, then that is the square matrix. So, just we are taking the rough revision of that matrices. After that we have seen rectangular matrix, number of rows and columns are not same, then that is the rectangular matrix.
Then we have seen upper triangular matrix, lower triangular matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, then triangular matrix, non-singular matrix, singular matrix. These all were the types of matrices. So diagonal matrix means only elements at the diagonal position are non-zero, all other remaining elements are zero. That was diagonal matrix. Diagonal elements are same, then that is the scalar matrix. Diagonal elements are 1, that is the unit matrix, or we can say identity matrix also. Now scalar matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, all are types of the square matrices. So हमने ये तो पढ़ लिया है, क्या है, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ लिया है. उसके बाद था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो, एक आधा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स जीरो हो, अबो एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, सो दैट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. डायगोनल्स एलिमेंट्स अबो डायगोनल आर जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले सभी जीरो हो, इस तरीके से. Suppose a square matrix is there, suppose A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33. These all elements below the diagonal. This is the diagonal elements. It is a diagonal. It is the diagonal. So elements below diagonal are 0. This is upper triangular. This is upper triangular matrix. And if like this, A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33. Now these are elements above the diagonal, so it is lower triangular. Lower triangular. So either upper triangular or lower triangular होगा तो उसको triangular matrix बोलेंगे. So हमने पढ़ा था उसके बाद singular matrix. अभी एक का दा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक आधा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो अगर जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है. डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. उसके बाद हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल के अबो एंड बिलो इफ एलिमेंट्स एट द रिस्पेक्टिव पोजिशंस आर सेम, देन दैट वाज द सपोज AHG, HBF, GFC. क्या है इसमें कंडीशन? AIJ मस्ट बी इक्वल्स टू AJI, I is not equal to J. AIJ, so A12 and A21, A13 and A31, A23 and A32 elements at the respective positions are similar or identical. सो डायगोनल के दोनों साइड्स में जो एलिमेंट्स एट रिस्पेक्टिव पोजिशन है वो अगर सिमिलर हो, AIJ इक्वल्स टू AJI, सो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड वन मोर टॉपिक इज देयर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लाइक दिस, सपोज 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0. नाउ ये जो एलिमेंट्स है A12 AIJ इज इक्वल्स टू -AJI, AIJ इज इक्वल्स टू -AJI. इस तरीके से हो. A12 पोजीशन के एलिमेंट -1 है, सो 21 का +1 है. A13 पोजीशन के एलिमेंट 2 है, 31 का -2 है. A23 का 3 है, A32 -3 है, और डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए. सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस वेर द टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आफ्टर दैट we have seen the addition and subtraction of matrices. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमें सबसे पहली बात याद रखनी है. फर्स्ट, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके मैट्रिक्स चैप्टर में ज़रूरी है. ठीक है, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम उसका देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा हुआ टॉपिक अगर हम नहीं देखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमें आगे चल के कुछ समझ में नहीं आ सकती है. कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो समझ में नहीं आए, इसलिए हम जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सपोज A इज द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स AIJ m/n and B is another matrix having BIJ again having order m/n.
means for addition or subtraction of matrices order of a matrix must be same, and what we do, we just add the elements at the respective positions. क्या करते हैं हम लोग, दो मैट्राइसेस का ऑर्डर अगर सेम हो, चाहे वो स्क्वायर ऑर्डर हो या तो फिर नॉन स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर ऑर्डर हो, बट फॉर द एडिशन और सब्सट्रैक्शन टू बी हैपन देयर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होने के लिए, करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें सेम चाहिए. ऑर्डर अगर सेम होगा तो हम उसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस ऐड कर देंगे या तो फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज A is the matrix having elements 1 minus 2, 1 minus 1 2, 3 0 1, and B is the matrix minus 1 0 1, 2 0 2 3 minus 1. So order of this matrix is 2 by 3. Order of this matrix is also 2 by 3. So we can add them. How we take addition? We add the elements at the respective position. इसका 1 1 पोजिशन का एलिमेंट और इसका 1 1 पोजिशन का एलिमेंट ऐड कर देंगे. सो 1 minus 1 0, इसका 1 2 का, इसका भी 1 2 पोजिशन का एलिमेंट. minus 1 plus 0 is minus 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 0 plus 3 is 3, 1 minus 1 is again 0. That is the addition of the two matrices. वही हम अगर सब्सट्रैक्शन लेंगे तो क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 1 minus minus 1 means 1 plus 1, it is 2. minus 1 minus 0, it is minus 1. 2 minus 1, it is 1. 3 minus 2, it is 1. 0 minus 3, minus 3. 1 minus minus 1, it is 2. So क्या करते हैं हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, पहली चीज दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट ऐड कर देंगे या तो फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें मिलेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सिर्फ कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम हो, बस दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं. अभी मल्टीप्लीकेशन की बात आ गई. फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्सट्रैक्शन का तो इजी है भाई. मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है थोड़ी सी दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी. मल्टीप्लिकेशन, इसका बहुत बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की. जब हम हमारा मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है या नहीं. अगर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो हम वो चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ सकेंगे. इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है, उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमें आना बहुत ज़रूरी है. अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस है. मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इसके लिए दो कंडीशंस वहाँ पे दी हुई है. हमें देखते हैं पहली कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑर्डर of A, or we can say square order of A, it must be A and B are of same square order. ऐसा बोल सकते हैं. मैट्रिसेस कैपिटल A and B must be of same square order. ये वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. दोनों का ऑर्डर स्क्वायर ऑर्डर हो और सिमिलर हो. तो क्या करेंगे, देखिए सपोज A इज द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर है 2 by 2. B इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स B11, B12, B21, B22, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. मतलब दोनों के दोनों मैट्रिसेस आर हैविंग सेम स्क्वायर ऑर्डर. पहली चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर स्क्वायर हो, ये बात सबसे पहली बात है. सेम स्क्वायर ऑर्डर होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम ले सकते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन लेने के लिए क्राइटेरिया है. क्या करना है पता है, पहला रो उठाने का. पहला मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो उठाएंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और B के पहले रो कॉलम पे रखेंगे. क्या किया मैंने, ठीक से याद रखना है. व्हाइल टेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस,
बोथ मैट्राइसेस मस्ट बी ऑफ सेम स्क्वायर ऑर्डर। पहली केस हम पढ़ रहे हैं सेम स्क्वायर ऑर्डर की, ठीक है। सो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेते वक्त पहले मैट्रिक्स का पहला रो उठाना है, उसको क्लॉकवाइज घुमा के उसको पहले कॉलम पे रखना है। जो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, उनके बीच में समेशन करना है। देखिए अभी हम इसको उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस पे रखेंगे। बहुत सीधी सीधी टेक्निक है। इसको फर्स्ट रो को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे। फर्स्ट रो हमने उठाया, फर्स्ट कॉलम पे रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1-1 पोजीशन पे वो एलिमेंट आएगा। बताइए क्या क्या आएगा, वो A11 इंटू B11, उसके बीच में प्लस A12 इंटू B21। देखिए हमने फर्स्ट रो उठाया था, क्लॉकवाइज घुमाया था, इस पे रखा था। जो एक दूसरे के ऊपर आ गए उनका मल्टीप्लिकेशन ले लिया और उनके बीच में हमने क्या कर दिया, एडिशन लिख दिया। सही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत सीधी सादी टेक्निक है, ठीक है। चलिए हम सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी फर्स्ट रो से क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड, सो 1-2 पोजीशन का एलिमेंट आएगा। सो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1-2 पोजीशन का एलिमेंट आ गया। सो पहले रो को हमने उठाया था, क्लॉकवाइज घुमाया था, इस पे रख के मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दोनों एलिमेंट्स मिल गए। अभी क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अभी सेकेंड रो उठाएंगे, सेकेंड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम पे रख दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2-1, सो 2-1 पोजीशन का एलिमेंट हमें मिलेगा। A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। फर्स्ट रो को हमने उठाया, क्लॉकवाइज घुमाया, इस पे रख दिया फर्स्ट कॉलम पे। जो एक दूसरे के ऊपर आए उनका मल्टीप्लिकेशन ले लिया और उनके बीच में एडिशन ले लिया। A21 B11, A22 B21। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम उठाया, घुमाया, रख दिया। बताइए भाई क्या आएगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। क्या मिला मैट्रिक्स, फिर से कौन सा ऑर्डर आया, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आया एज दैट ऑफ A एंड B। सही बात है। मतलब जब A एंड B बोथ मैट्राइसेस आर ऑफ सेम स्क्वायर ऑर्डर, देन देयर मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो आएगा, इट इज अगेन ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ A एंड B। जो A का ऑर्डर है, B का ऑर्डर है, दोनों का स्क्वायर ऑर्डर है, सेम स्क्वायर ऑर्डर है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी उसी ऑर्डर का मिलेगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं उसका। एक एग्जाम्पल, सपोज A is the matrix, we take the standard one 1 2 3 4. B is another matrix -1 2 -2 1. दोनों का ऑर्डर 2/2 है, स्क्वायर मैट्राइसेस है, सेम ऑर्डर के हैं, सो वी कैन टेक A into B. हाउ वी टेक द मल्टीप्लिकेशन, वी हैव जस्ट सीन द क्राइटेरिया। फर्स्ट रो उठाने का है, फर्स्ट कॉलम पे रखने का है। जो एक दूसरे के ऊपर आ गए उनका प्रोडक्ट लेंगे, उनके बीच में समेशन आएगा। चलिए उठाया, फर्स्ट रो रख दिया फर्स्ट कॉलम पे, उठाया, क्लॉकवाइज घुमाया, रख दिया, 1-1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1-1 पोजीशन का एलिमेंट आएगा। 1 इंटू -1 दैट इज -1 इटसेल्फ, 2 इंटू -2 दैट इज -4। ओके, हमने फर्स्ट रो को उठाया था, क्लॉकवाइज घुमाया था, फर्स्ट कॉलम पे रख दिया था, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। चलिए फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1-2 पोजीशन का एलिमेंट, उठाया, घुमाया, रख दिया, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 इज अगेन 2। सही बात है। ये कॉल रो हमने उठाया था, दोनों पे रख के मल्टीप्लिकेशन ले लिया, उसको छोड़ दो। अभी इसको उठाएंगे, 3 4 उठाया, घुमाया और रख दिया इस पे। बताइए क्या आएंगे एलिमेंट्स, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू -2 इज -8। सेकेंड रो क्लॉकवाइज घुमा के फर्स्ट कॉलम पे रखा था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2-1, सो पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इज 2-1। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यस, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इंटू 1 इज 4। सो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फिर से 2/2, -1 -4 इज -5, 2 प्लस 2 इज 4, -3 -8 इज -11 एंड 6 प्लस 4 इज 10,
it is again of the order 2 by 2. So this is the multiplication of matrices when the two matrices are of same square order. ये हो गई फर्स्ट केस. अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक और केस है जिसमें मैट्रिसेस A एंड B का ऑर्डर सेम नहीं होता है. अभी सेम नहीं होता है, फिर कैसे करेंगे? उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, वो हम देखते हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, अगर हमें मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लेना है सेकेंड केस में क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उनका अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो, मतलब क्या है? A के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड B के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो. देखिए पहली चीज हमने देखी थी A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम स्क्वायर ऑर्डर. अभी हम देख रहे हैं सेकेंड केस. क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं. कैसा करने का है? देयरफॉर मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर Aij m by n and B is of the order Bij having n by p. See here, number of columns of A are equals to number of rows of B. देखिए m by n means these are number of rows and these are number of columns. Here these are number of rows and these are number of columns. So यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ठीक से, A के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड B के नंबर ऑफ रोज आर सेम, सो A into B is possible. A into B is possible and that matrix has the order m by p. That matrix has the order m by p. मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर क्या आएगा? m by p आएगा. मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आएगा. ये है हमारा सेकेंड केस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. इसका भी जब हम एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस या तो फिर इनवर्स फाइंड करेंगे मैट्रिसेस के बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड एंड ऑल द मेथड्स, वी हैव टू take the matrix multiplication. In that cases we require this kind of condition when matrix multiplication is taken but orders of matrix A and B are not same. So only one condition we have to remember, number of columns of matrix A must equals to number of rows of matrix B. Then let's take the example again. Suppose A is the matrix of order 2 3 minus 1 1 minus 2 1. What is the order of this matrix? It is 2 by 3. 2 number of rows and 3 number of columns. So order is 2 by 3. So B is the matrix having order 1 2 3. Now here, or we can say 1 2 3 minus 1 1 2. It is of order 3 by 2. Now 2 by 3 is the order of matrix A. 3 by 2 is order of matrix B. If we observe, number of columns of matrix A are 3, 1 2 and 3, and number of rows of matrix B are also 3. So we can take the matrix multiplication as per this rule. We can take the matrix multiplication. So A into B is the matrix. देखिए फिर से वही स्टेज हमारा, मैट्रिक्स A का पहला रो उठाने का, उसको क्लॉकवाइज घुमाने का, पहले कॉलम पे रख देने का. जो एक दूसरे के ऊपर आ गए उनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, उनके बीच में समेशन आ जाएगा. उठाया पहला रो, घुमाया क्लॉकवाइज, रख दिया. सो 2 into 1 will be 2, 3 into 2 will be 6, minus 1 into 3 will be minus 3. फर्स्ट रो हमने उठाया था, फर्स्ट कॉलम पे रखा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 1 पोजीशन का एलिमेंट हमें मिल गया. चलिए सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यस, 2 into minus 1 is minus 2 plus 3 into 1 is 3 minus 1 into 2 is minus 2. ओके, नाउ सेकेंड फर्स्ट रो से दोनों कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो हमारा नेक्स्ट रो विल बी सेकेंड रो. सेकेंड रो घुमाया क्लॉकवाइज, रख दिया फर्स्ट कॉलम पे. यस, 1 into 1 is 1, minus 2 into 2 is minus 4 and 1 into 3 will be 3. सेकेंड रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया था, सेकेंड फर्स्ट 2 1, सो 2 1 पोजीशन का एलिमेंट आ गया. सेकेंड रो से हम सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ गए एलिमेंट्स. 1 into minus 1 minus 1, minus 2 into 1 minus 2 and 1 into 2 is plus 2.
सो आ गया मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई, 1 2 नंबर ऑफ रोज एंड 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 by 2. So the answer will be 2 plus 6 is 8, 8 minus 3 will be 5, minus 2 minus 4 plus 3 minus 1. Here 1 minus 4 minus 3 plus 3 will be 0, minus 2 plus 2 0, only minus 1 will remain there. So resultant matrix is of order 2 by 2. Observe number of rows of first matrix by number of columns of second matrix. That is the resultant matrix when we take the multiplication of matrices by our second rule. So these are the basic concepts of addition, subtraction and multiplication of matrices, but division of matrices is not possible because matrix doesn't has the particular real value. देखिए remember हमने determinants में determinant का particular value find किया था, हमने वो रूल यूज़ किया था AD माइनस BC का अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हो, 3 by 3 का भी हमने सॉल्व किया था। लेकिन डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर रियल वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स को पर्टिकुलर रियल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए मैट्रिक्स का डिवीजन हम लोग नहीं ले सकते। ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, जो कि हमने आपके सामने अभी मैंने रख दिया है। इसके बाद हम सीधे से स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप एक काम कीजिएगा, 11th का जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, उसका ठीक से आप स्टडी कीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे डायरेक्टली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिसेस पे स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा 12th का HSC का मैट्रिक्स चैप्टर होगा। थैंक यू वेरी मच। I hope you all have seen this kind of topics in 11th standard, and now you are going to revise that topics. Those all formulae and results you have to take in consideration for this chapter particularly. So all the best to all of you for this new chapter. Thank you very much.